Assalamu alaikum dear viewers. As always, today I've come up with another lecture. And this lecture is really informative. It's very much educative. Educative in the sense that it deals with, a very interesting topic, which is linguistics or a language, any language. So since we are learning the English language, we need to know the different parts of this language and the structure of this language, the way this language functions, and the way this language is structured or the way this language is constructed. So we need to know what this language really is. It is also important to know that language has great significance when it comes to our everyday life, because we use language in different contexts. I mean, you use language in a professional context, you use language in different social settings, and there is a branch of linguistics called social linguistics. Now that social linguistics deals with the use of language in a social setting, and then we have this was social linguistic, and we have neuro-linguistics as well. We have and then in social linguistics there are different branches of it, like we talk about idiolects, we talk about dialects, we talk about register, we talk about jargons, we talk about Creole, we talk about pidgin, and many other sub branches of this very broader branch of linguistics. तो आज हम बात करेंगे, जिस तरह हम लैंग्वेज सीख रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि लैंग्वेज की बहुत बड़ी इन्फ्लुएंस होती है हमारी ज़िंदगी में। यानी इंसान की पहचान उसकी लैंग्वेज से होती है। अगर आप अगर आप एक अच्छी लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे तो उससे हमें आइडिया होता है कि ये जो बंदा है ये कितना लर्नड बंदा है, मतलब कितना वेल ब्रॉट अप है। तो हमें बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं उसकी लैंग्वेज से, क्योंकि हमें नहीं पता होता कि इसके दिमाग में क्या चल रहा है, इसके दिल में क्या चल रहा है। These all things are hidden. What we do know is the language that individual uses. So it's always important to be aware of the language you use. अच्छा, फिर हमें पता होता है कि एक फॉर्मल लैंग्वेज है, एक इनफॉर्मल लैंग्वेज है। आप इनफॉर्मल लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं इनफॉर्मल सेटिंग में, जबकि आप फॉर्मल लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं फॉर्मल सेटिंग्स में। जिस तरह आपकी एक कैजुअल ड्रेसिंग होती है, एक फॉर्मल ड्रेसिंग होती है। कैजुअल ड्रेसिंग आप फॉर्मल सेटिंग में नहीं करते और आप फॉर्मल ड्रेसिंग कैजुअल सेटिंग में नहीं करते। बिल्कुल लैंग्वेज भी इसी तरह ही होता है कि आप अगर आप एक फॉर्मल सेटिंग में बैठे हैं, आपकी जो एम्बियंस है, जो इन्वायरमेंट है, जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत फॉर्मल है, तो ज़ाहिर बात है आपकी जो लैंग्वेज होगी, आपकी जो डिक्शन होगी वो फॉर्मल होगी। अच्छा, इंसान जब खुशी का इजहार कर रहा होता है उसकी एक अलग लैंग्वेज होती है। वो जो लेक्सिकल आइटम्स यूज़ कर रहा होता है, उसकी जो वोकैबुलरी होती हैं वो भी डिफरेंट होती हैं। सिमिलरली जब आप डिसअपॉइंटेड होते हैं, आप थोड़ा से अपसेट होते हैं, तो उस वक्त आपकी जो लैंग्वेज होती हैं वो अलग होती हैं। तो अच्छा, फिर अगर आप जेंडर वाइज चले जाए तो जेंडर वाइज भी लैंग्वेज में आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क नज़र आता है। मेल की जो लैंग्वेज है वो इतनी ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं होती, वो बड़ी कंसाइज होती हैं। दैट्स वेरी टर्स, दैट्स वेरी मच लैकोनिक। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप फीमेल की लैंग्वेज को देखें तो वो बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव होती हैं, क्योंकि आई थिंक इट्स नेचुरल दैट वेमेन आर मोर एक्सप्रेसिव एज़ कम्पेयर टू मैन। अच्छा, फिर अगर हमारी आप रिटन उसमें आ जाए, किताबों में आ जाए, तो अगर एक कोई राइटर है, if he or she is if the writer is a bit like anti-feminism or all that, so you would see some patriarchal notions in the use of his language, that misogynistic glimpses of language in the use of his language.
Similarly, if there is a writer who is pro-feminism or supports women and believes in women empowerment, so you would definitely then see that he is using language that is in the favor of the opposite gender and all that. And the same goes for women, that they tend to use the language that is in their favor. Similarly, अगर आप बात करते हैं माइनॉरिटीज़ की, या फिर आप जाते हैं ऐसी सोशल स्ट्रेटास के ऊपर, यानी जो हमारी एक सोसाइटी में जो क्लासिफिकेशन होती है डिफरेंट क्लासेस की, उसमें अगर कोई क्लास ज़्यादा प्रिविलेज्ड है तो उसकी लैंग्वेज से भी आपको पता चलता है कि उनकी लैंग्वेज रिलेटिवली डेवलप होती है। अच्छा, अगर कोई क्लास अंडर प्रिविलेज्ड है, यानी वो क्लास ज़्यादा प्रिविलेज नहीं है, तो वो भी हमें पता चलता है कि यार वो जो लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे होते हैं, अक्सर हम कह रहे होते हैं ना, ये एलीट क्लास से बिलोंग करता है, ये मिडिल क्लास से बिलोंग करता है, बिल्कुल लोअर क्लास से बिलोंग करता है, ये बंदा बड़ा प्रिविलेज है, हाँ ये अच्छे स्कूलों में पढ़ के आया है, इनकी एजुकेशनल बैकग्राउंड बहुत अच्छी है। ये सारी चीज़ें आपको मतलब कंफर्म हो रही होती हैं, क्लियर हो रही होती हैं, आप रियलाइज़ कर रहे होते हैं उस बंदे की लैंग्वेज से। अच्छा, फिर अगर कोई बंदा बड़ी वॉल्गर किस्म की लैंग्वेज यूज़ कर रहा है, बड़ी यानी उसकी लैंग्वेज जो है वो बड़ी इम्पोलाइट है या अनएथिकल है, उसकी कोई मतलब वो नहीं है, उसमें मोरालिटी के कोई आपको उसमें वो नहीं मिल रहे, तो फिर आप कहते हैं कि यार इस बंदे का जो अपब्रिंगिंग है वो सही नहीं हुआ है। तो लैंग्वेज इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वन हैज़ टू बी वेरी कॉशियस when it comes to talking about language or discussing language or learning language. So let's explore what linguistics is. तो यहाँ अगर आप देखें मैंने लिखा है linguistics। अच्छा, linguistics क्या होता है? लैंग्वेज जो होता है वो तो लैंग्वेज को कहते हैं, और ये जो स्टिक्स पार्ट आपको नज़र आ रहा है ये उसकी स्टडी है, यानी साइंटिफिक स्टडी ऑफ अ लैंग्वेज। लैंग्विस्टिक इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज and its focus is the systematic investigation of the properties of particular languages, कि उसके जो मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ है उस लैंग्वेज के और उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको आप इन्वेस्टिगेट करते हैं जब हम बात करते हैं लैंग्विस्टिक्स की। अच्छा, इट इनकम्पासेस नॉट ओनली द स्टडी ऑफ साउंड, यानी सिर्फ ये फिनोलॉजी को इनकम्पास नहीं करता कि लैंग्वेज के साउंड्स क्या है, मतलब मुख्तलिफ वर्ड्स के क्या साउंड्स होते हैं, ग्रामर को भी नहीं करता, सिर्फ इन चीज़ों को नहीं करता कि साउंड, ग्रामर एंड मीनिंग, बट आल्सो द हिस्ट्री ऑफ लैंग्वेज, फैमिलीज, हाउ लैंग्वेजेस आर एक्वायर्ड बाय पीपल, यानी ये पूरा एक थॉरली इन्वेस्टिगेट करता है कि ये लैंग्वेज हाउ इट केम इनटू बीइंग and how people manage to acquire this language, what is the influence of this language, how well spread this language is, just like the English language, which is now the second language of the world because it is almost spoken everywhere. Internationally, when you go, you communicate in this very language because it is the second language that most of the people speak. So this is what a language is. अच्छा, फिर जिस तरह मैंने कहा, as a science it deals with the nature and its structure of language, including the study of grammar, syntax and phonetics. मतलब phonetics को भी देखता है कि साउंड्स बनते कैसे हैं, मतलब हम जो साउंड प्रोड्यूस करने का हमारा मैनर क्या है, पैटर्न क्या है, यानी आपके नेजल साउंड्स है, आपके जो बाइलेबियल साउंड्स है, आपके डेंटल साउंड, लेबियोडेंटल्स होते हैं, नेजल साउंड्स है, बाइलेबियल साउंड्स है, मुख्तलिफ एक पूरा ये हमारा एक ओरल वो है सिस्टम है जिसके थ्रू हम साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं। इस पूरे ब्रांच के का जो वो है, जो ब्रांच इसके साथ रिलेट करता है, इसको डिस्कस करता है, वो हमारा फोनेटिक्स है। जिस तरह मैंने यहाँ पे लिखा है कि फोनेटिक्स द स्टडी ऑफ द प्रोडक्शन या एकॉस्टिक्स एंड हेरिंग स्पीच साउंड्स, कि साउंड्स किस तरह प्रोड्यूस होते हैं, ये हमें फोनेटिक्स बताता है। अच्छा, फिनोलॉजी क्या है? द पैटर्न ऑफ साउंड्स, के मुख्तलिफ साउंड्स की क्या पैटर्न्स है,
यानी जब आप साउंड्स को स्टडी करते हैं, उनके डिफरेंट पैटर्न्स को स्टडी करते हैं, प्रोडक्शन मैनर को नहीं, वो तो फोनेटिक्स है, फिर आप फेनोलॉजी में आते हैं। उसके बाद हमारे पास है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी फिर स्ट्रक्चर को स्टडी करता है, वर्ड्स के स्ट्रक्चर को स्टडी करता है कि वर्ड्स जो है वो किस तरह बनते हैं, वो यानी द फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स, वो मॉर्फोलॉजी। उसके बाद है सिंटेक्स। सिंटेक्स हमारा होता है कि सेंटेंसेस को, वर्ड्स को या फ्रेजेस को आप किस तरह प्लेस करते हैं ताकि एक मीनिंगफुल वो बने, उनसे मीनिंग दे, यूनिट बने, लैंग्वेज की एक मीनिंगफुल यूनिट बने, तो वो हमें सिंटेक्स देता है स्ट्रक्चर के बारे में। यानी जो आप फार्मूला वगैरह बनाते हैं, इंग्लिश का जो बेसिक फार्मूला होता है वो SVO है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, फिर उसको मज़ीद इसके वेरिएबल्स हैं। उसके बाद है सीमेंटिक्स। अच्छा, सीमेंटिक्स जो है वो मीनिंग से रिलेट करता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपकी जो सिंटेक्स है वो ठीक है तो आपकी सीमेंटिक्स ठीक होगी, अगर स्ट्रक्चर सही है तो मीनिंग भी सही होगी, अगर स्ट्रक्चर खराब है तो मीनिंग भी खराब। उसके बाद है प्रैग्मेटिक्स। अच्छा, प्रैग्मेटिक्स क्या होता है? प्रैग्मेटिक्स लैंग्वेज के यूज को डिस्कस करता है किसी खास कॉन्टेक्स्ट के अंदर, कि भाई अगर आप एक मतलब क्लासरूम के अंदर जो मैं बात कर रहा हूँ एज ए टीचर, तो वो कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट है, तो वहाँ मेरी लैंग्वेज भी डिफरेंट होगी और उसके मीनिंग जो डिराइव्ड होंगे, जो इम्प्लाइड मीनिंग्स होगी, या जो स्टूडेंट उसको क्या इन्फर करेंगे उस लैंग्वेज से, तो वो भी डिफरेंट होगा क्योंकि कॉन्टेक्स्ट ही डिफरेंट है। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक चीज़ लिखी है, आप सबको आई एम श्योर नज़र आ रही होगी। ये जो पार्ट है इसको मैंने लिखा है ट्रांसक्रिप्शन। ये आप नज़र आ रहा होगा आप सबको, ट्रांसक्रिप्शन। अच्छा, जो ट्रांसक्रिप्शन होती हैं डिक्शनरी के अंदर, आप सब वर्ड स्टडी करते हैं। जब आप डिक्शनरी ओपन करते हैं तो वहाँ पे वर्ड दिए होते हैं, सही है। अच्छा, मिसाल के तौर पर जिस तरह मैंने यहाँ पे लिखा है, हमारे पास एक वर्ड है हेड, ये आपने डिक्शनरी में चेक किया, इस वर्ड के बिल्कुल बराबर में, एक तो पहले आपको ये पता चलता है डिक्शनरी में कि इस वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, फिर आपको इस तरह के सिंबल्स मिलते हैं, स्लैशेस मिलते हैं, इन स्लैशेस के अंदर आपको इस तरह की ट्रांसक्रिप्शन मिलेगी। अब ये जो ट्रांसक्रिप्शन है ना, इसे हम कहते हैं फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन, यानी ये इसका साउंड है कि इस वर्ड को आपने प्रोनाउंस कैसे करना है। इस ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या होता है कि इसको आप प्रोनाउंस कैसे करेंगे, इस वर्ड को आप प्रोड्यूस कैसे करेंगे, तो ये इसकी ट्रांसक्रिप्शन है। सो वी नीड टू नो दिस साउंड्स एज वेल। ये मैंने जिस तरह यहाँ पे मैंने एक वर्ड लिखा है हैवी, तो हैवी की ट्रांसक्रिप्शन आपको यहाँ नज़र आ रही होगी, ये स्लैशेस के अंदर होती हैं। फिर हार्ट है, तो हार्ट की ट्रांसक्रिप्शन आपको इधर नज़र आ रही है। इसके मुख्तलिफ नाम्स होते हैं, इसमें यानी डिफ्थोंग है, मोनोफ्थोंग है, मतलब सेलेबल वगैरह को हम स्टडी करते हैं। फिर यू नीड टू नो ऑल दिस पार्ट्स ऑफ लैंग्वेज ताकि आपको साउंड्स में फिर कोई मसला ना हो। तो बस ये है कि जब आप डिक्शनरी खोलते हैं, कोई वर्ड देखते हैं, तो इस तरह की चीज़ें भी आपको नज़र आ रही होती हैं। ये उन वर्ड्स की फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन कहलाती हैं। अच्छा, अब हम थोड़ा सा जिस तरह यहाँ पे हम आएंगे फेनोलॉजी के ऊपर। फेनोलॉजी द साइंटिफिक स्टडी ऑफ स्पीच साउंड है, यानी साउंड को जब आप स्टडी करते हैं तो उसको फेनोलॉजी कहते हैं। फनीम क्या होता है? सबसे छोटा साउंड जो बनता है किसी भी लैंग्वेज का, उसको हम फनीम कहते हैं। क्या कहते हैं? फनीम। मिसाल के तौर पर ये जो सी है, इसका सा साउंड भी बनता है, का साउंड भी बनता है, ये एक फनीम है। हर लेटर का अपना एक साउंड होता है, आ, बा, खा, डा, सा, जा, मतलब ग, ज, तो ये सारे क्या हैं? ये आपके फनीम्स हैं। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ मैंने लिखी है, आपको नज़र आ रही होगी, ये क्या है? कनेक्टेड स्पीच। ये जो आपको इधर नज़र आ रहा होगा, दिस इज कॉल्ड कनेक्टेड स्पीच। अच्छा, कनेक्टेड स्पीच क्या होती है? जब गोरे जब नेटिव स्पीकर अंग्रेजी बोल रहे होते हैं तो उनकी स्पीच बड़ी कनेक्टेड होती है। जिस तरह मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, स्पीच इज कंटिन्यूअस स्ट्रीम ऑफ साउंड्स विदाउट क्लियर कट बॉर्डर लाइन्स बिटवीन ईच वर्ड। यानी ये एक कनेक्टेड स्पीच हमें मिल रही होती है जिसमें कोई क्लियर कट बॉर्डर लाइन्स नहीं होती। तो जिस तरह वो, यानी हम कहते हैं आई एम गोइंग, अब जब कोई नेटिव बोल रहा होगा आई एम गोइंग, आई एम गोइंग, आई एम टॉकिंग टू यू, व्हाट यू डूइंग, लाइक वी से व्हाट आर यू डूइंग, एंड दे से व्हाट यू डूइंग, लाइक व्हाट आर यू डूइंग, सो लेट मी टॉक टू यू। इस तरह एक वर्ड है हमारे पास, मैं आपको मेंशन कर देता हूं,
वर्ड यानी इस तरह का एक पूरा फ्रेज है, लेट मी, मिसाल के ये है। अब ये अगर देखें तो इसमें बहुत फर्क है, यानी क्लियर कट हमें यहाँ पे बॉर्डर लाइन नजर आ रहे हैं इन वर्ड्स के दरमियान। लेकिन जब आप इसको कनेक्टेड करेंगे तो ये कुछ यूं बन जाएगा, यानी ये लेट मी क्या बनेगा, ये बनेगा ले मी, ले मी। So this is how the native speakers speak English, and that is why we find it a bit difficult to comprehend it or to decipher what they are saying when you're not used to certain kinds of accent. But when you're used to it, then it's never a problem. You see over here, I have written one other. Two words are here, last year. Now this is a clear-cut borderline, but when you speak it in a connected manner, last year, last year, last year. So it's like this, L-A-S-T-E-A-R. Now the Y has disappeared. And you see the other word, which is an apple, but in a connected manner, in a connected speech, it is like an apple. An apple. So the N has gone and it has somehow glued to the word apple. An apple, an apple. An apple, an apple. Now see, there's a difference, right? अच्छा, उसके बाद क्या है, या हम आते हैं मॉर्फोलॉजी के ऊपर। तो द स्टडी ऑफ वर्ड्स फॉर्मेशन, जिस तरह मैंने पहले कहा। अच्छा, मॉर्फोलॉजी में जो सबसे छोटा यूनिट होता है वो मॉर्फीम है। मॉर्फीम क्या होता है? द स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट ऑफ अ लैंग्वेज। इन सारी चीज़ों की जब आपको क्लैरिटी हो जाती है तो लैंग्वेज को टैकल करने में आपको बड़ी आसानी होती है। उसके बाद हमारे पास सिमेंटिक्स है, द स्टडी ऑफ मीनिंग ऑफ वर्ड्स, फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस। अच्छा, अब सिमेंटिक्स के अंदर बहुत सारी चीजें हैं। अच्छा, ये जो लेक्सी मैंने लिखा है ये लेक्सिकोलॉजी से निकलता है, जो मॉर्फोलॉजी के अंडर ही आता है। लेक्सिम क्या होता है? अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ द लेक्सिकॉन। लेक्सिकॉन जो है वो आपका वर्ड स्टॉक होता है, यानी जो आपकी विकेबलरी है वो आपकी लेक्सिकॉन है। उसमें से कोई एक वर्ड जो होता है वो लेक्सिम कहलाता है। So unit of the lexicon, which is the word stock. A lexeme is also known as a lexical unit. कोई भी एक वर्ड जो होता है, a lexeme refers to a single word and all of its forms. For example, हमारे पास एक वर्ड है go. अब go हमारे पास एक सिंगल लेक्सिम है, लेकिन इससे बहुत सारे और वर्ड डिराइव होते हैं, जिस तरह go, goes, went and going. So ये बाकी जो इसके, यानी ये लेक्सिम तो एक ही है ना go, ये बाकी जो वर्ड इनसे निकले हैं, these are the derived forms of the word go. So this is called derivational morphology. अच्छा, हिपोनिमी हमारे पास एक सब ब्रांच है सिमेंटिक्स का। The meaning of one word is included in the meaning of another. मिसाल के तौर पर जब किसी एक वर्ड की मीनिंग किसी दूसरे वर्ड में आपको मिल जाए, फ्लावर है ना, अब फ्लावर की मीनिंग हमें रोज में मिल रही है क्योंकि रोज भी फ्लावर है। अब वेजिटेबल है तो कैलीफ्लावर जो है, या मतलब कोई भी जो वेजिटेबल से रिलेटेड कोई भी वेजिटेबल के आइटम को आप उठाएंगे तो वो वेजिटेबल वाली मीनिंग हमें उसमें मिल जाती है, तो इसको हम कहते हैं हिपोनिमी। अच्छा, उसके बाद एक कॉलोकेशन, इट रेफर्स टू आइटम्स विच आर कन्वेंशनली फाउंड टुगेदर इन द लैंग्वेज। इन ऐसे वर्ड्स जो आम तौर पर एक साथ आते हैं उन्हें हम कॉलोकेशन कहते हैं, जिस तरह डार्क एज, राइट। और होमोफोन्स कौन से होते हैं? टू और मोर वर्ड्स, डिफरेंट फॉर्म्स बट सेम प्रोनाउंसिएशन। कुछ वर्ड्स होते हैं जो फॉर्म्स उनकी लिखने में अलग होंगे, लेकिन आपको उनकी प्रोनाउंसिएशन जो है वो सेम नजर आएगी। मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैं एक वर्ड लिख देता हूँ, वर्ड हमारे पास है सी, और दूसरा आप ये वाला सी देखें, तो ये एक एग्जाम्पल है होमोफोन्स की, क्योंकि इसमें दोनों की जो प्रोनाउंसिएशन है वो सेम है, वर्ड हालांकि डिफरेंट है। अच्छा, तो इन्हें हम कहते हैं होमोफोन। अच्छा, होमोनम्स क्या होते हैं? सेम फॉर्म डिफरेंट इन मीनिंग, यानी ये फॉर्म सेम होंगे लेकिन इसकी जो मीनिंग है वो क्या है? डिफरेंट है। मिसाल के तौर पर आई विल राइट ओवर हेयर, यानी मैं एक वर्ड लिख देता हूं बैंक। यहां पे अगर आप देखें बैंक, तो ये रिवर को भी कहते हैं द बैंक ऑफ द रिवर, और एक हमारे पास ये वाला बैंक है। इसका मतलब क्या होता है? जो आपका एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को भी आप क्या कहते हैं? बैंक कहते हैं। मतलब ये इनमें क्या है, आपको फर्क नजर आ रहा है। सो आई एम श्योर यू आर गेटिंग इट। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है अगला पॉलीसेमी। अब पॉलीसेमी में क्या होता है? अ वर्ड हैविंग मोर मीनिंग्स,
यानी किसी एक वर्ड के बहुत सारे मीनिंग हो सकते हैं, फुट ऑफ अ पर्सन, फुट ऑफ अ बेड, फुट ऑफ अ माउंटेन, सो ऑल दैट। और सैनोनिम का मतलब है टू वर्ड्स हैविंग सेम मीनिंग। एंटोनिम का मतलब है वर्ड्स हैविंग ऑपोजिट मीनिंग। मेटोनिमी का मतलब क्या होता है? अ वर्ड यूज इन प्लेस ऑफ अनदर विच इज क्लोजली कनेक्टेड इन एवरीडे लाइफ। इन एक वर्ड है जो दूसरे वर्ड के लिए यूज होता है। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं ही ड्रैंक द होल बॉटल। अब बॉटल को तो वो नहीं पी सकता, लेकिन बॉटल से हम क्या मीनिंग लेते हैं? एनी फॉर्म ऑफ लिक्विड, water, or anything like that. So I'm sure this lecture was, a lot more insightful, a lot more meaningful, and a lot more informative. If you like my videos that I keep sharing with you people, on the page and my YouTube channel, I definitely look forward to all of you sharing these videos and subscribing to my YouTube channel as well, because it will then give me a validation from you people that whatever I'm doing is acknowledged, is appreciated, and is making some sort of impact on the lives of the enthusiastic learners of this brilliant language. So take a great care of yourself. I'll catch you back in another lecture. Thank you very much.